मैडम ये परमिशन मैम ग्रांटेड। आपने लाइव कर क्या सर माइक मैंने ठीक? बीच में ओपन कर दिया है। जी सुमित भाई 5 मिनट में और शुरू कर लेते हैं, 5 मिनट और देख लेते हैं। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना।
सुमित भाई करें शुरू? हाँ ठीक है, हेमंत भाई शुरू करते हैं। Welcome participant to our Lakshmi Nagar CP study circle. Today we have Sumit Gargji with us. He is presently Northern Regional Council member, and he is also now contesting for CC. So my best wishes to Sumit ji. And Thank you, Hemanth bhai. about his profile, I think Sumit will have very big profile. So he is very good friend of mine. Whatever I know him, I think he's the best person. His NGO CASA has doing very well, and in last one or the half year during this COVID period, I think the Sumit Bhai has done work no one has done that. I think he arranged as many 150 different topic lectures and also certification courses. So Sumit Bhai, best of luck, and I hope कि आप ये जो काम इंस्टीट्यूट के लिए और अपने मेंबर्स के लिए करते आ रहे हैं आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। हेलो, सुन रहे, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। तो Shall I ये start? तो हाँ, अब मैं सुमित जी को आज का जो टॉपिक है वो सुमित जी अब स्टार्ट करेंगे। Thank you, Hemant bhai, my convener of this study circle, Hemant Bagheria ji, and other participants joining from the Lakshmi Nagar study circle. First of all, thank you, Hemant bhai, for giving me opportunity to share my views, and appreciate that you have discussed, you have said, and definitely we are good friends. So we both are doing for the profession, and always working for the professional coach. So whenever you feel anything you want to discuss, whether it may be other subject webinar or it may be other discussion on any topic with regard to any professional development, you can feel free to contact me. And thank you, Amanji, for uh, giving me wishes for upcoming uh, tenure as I am moving from regional to central. So thank you very much to Hemant Bhai, Lakshminagar Study Circle, and all participants. Now, as far as today's topic is concerned, I am going to take uh, in first I am showing my presentation. Yes. So today we are going to cover audit under Companies Act, role of auditing standards, and various other aspects which we are going to discuss. Wherever you feel anything you want to discuss, you can just drop me a query in the chat box. I will see time to time. आपकी जो भी क्वेरी है आप ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिएगा, या कोई अदर टॉपिक regarding financial statement, so that I can touch upon that. As far as today's agenda is concerned, I am going to discuss, because auditing, when we talk about auditing, then definitely it comes in our mind ki what is the legal provisioning, legal backing behind the audit. So first we will see auditing standards, how many auditing standards, what is the applicability, and what is our responsibility with regard to auditing. Thereafter, specific consideration due to COVID-19, COVID के कारण बहुत सारी limitations, other factors which we have faced in last financial year audit, and इस साल भी हम लोगों को face करना पड़ रहा है. So what are the specific consideration और क्या हमें अपनी report में उन चीजों को sum up करना है. Thereafter, management service versus auditors disqualifications. अगर हम किसी client का audit के साथ साथ कोई और काम भी कर रहे हैं, like MCA forms, ITR forms, client की behalf पर representational services, bookkeeping. So what is the provisions behind this clause? We will see. Thereafter, audit accounting standards overview, क्योंकि जब भी हम financials का audit करते हैं तो financials should be prepared as per following the all applicable accounting standards. So applicable accounting standards, there are two sets of accounting standards. One is traditional accounting standard, जिसे हम IGAAP कहते हैं,
Indian generally accepted accounting principles, IGAAP popularly known as, and second one is Ind AS, which is a converged form of international accounting standards. So we will see the applicability of that. Thereafter, if any point you have with regard to analysis of CARO, वो भी एक बार हम देखेंगे कारो 2016 वर्सेस 2020 क्या इश्यूज हैं हमारे सामने और हाउ वी कैन incorporate the points appearing in the financial statement in our CARO reporting part. So these are the agenda of the today discussion. So all the participants once again requested कि if you have any query you can post in the chat box. I will see question answer box में जरूर post कीजिएगा so that I can see and revert if any. If you need any documents, draft documents required regarding audit process, you can mobile number. So I will touch upon the section 143 powers and duties of the auditors and auditing standards. Friends, जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमारी ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी पावर्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, देयर आफ्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर एंड ड्यूटीज यदि हमें मिलती हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमारी जनरेट होती है, क्रिएट होती है कि हम किस तरह ऑडिट प्रोविजंस को फॉलो करते हुए अपनी ऑडिटिंग पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर सके. बिलीव मी फ्रेंड्स कि जितने भी एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज हैं, उन सभी का फोकस होता है कि ऑडिटर्स ने अपना रोल कैसे प्ले किया है. If we followed, if as auditors we have followed all the applicable rules, regulations, auditing standards, then definitely we can safeguard our interest in the future. अदरवाइज बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जब मैनेजमेंट फ्रॉड करता है या बैंक का पैसा साइफन करता है या किसी और तरह के जब मिसमैनेजमेंट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, देन अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने उस फ्रॉड को, उस मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाइड करने के लिए रीजनेबल स्टेप लिए थे या नहीं लिए थे. जरूरी नहीं है कि हर फ्रॉड को हम आइडेंटिफाइड ही कर पाए, बट उस फ्रॉड को अपरेंटली या उस फ्रॉड को सेफगार्ड करने के लिए, आइडेंटिफाइड करने के लिए व्हाट प्रिकॉशंस वी हैव टेकन and what safeguard we have used during the course of our audit. So it is required. So first section 143, which talks about the powers and duty. Subsection 2, auditor shall make a report to the members of the company on account examined by him on every financial statement. Mark my word, examined by him on every financial statement. Make a report. अब रिपोर्ट क्या बनानी है, कोई भी फाइनेंशियल्स का हम जब ऑडिट कर रहे हैं तो वेदर इट इज इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वी हैव टू सी आवर रोल. जब अपना रोल डिसाइड होगा, देयर आफ्टर आवर्स विल बी गिवन बाय सेक्शन. वी विल डिस्कस लेटर ऑन कि हाउ आवर रोल्स इज डिफाइंड इन वेरियस एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स. Every auditor shall comply with the auditing standards. Here you can see section 143 subsection 9 specifically हमारी powers जो and duties हैं वो सभी को यहाँ पर define करता है और specific कहता है कि we are bound to follow all the auditing standards and the central government may prescribe the auditing standards or addendum thereto as recommended by the ICAI. So जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं आईसीआई ने नोटिफाइड करे हैं, दे ऑल आर एप्लीकेबल फॉर एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर डूइंग द ऑडिट अंडर कंपनी. नाउ अगर हम ऑडिट की बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है. हमारा उसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए.
it has been defined here in section 134. The director's responsibility statement referred in clause C of section 3 shall state that in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards has been followed along with the proper explanation relating to the material departure. अब यहाँ पर जो बात कर रहा है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है management is responsible to prepare the financial statement as per all applicable accounting standards. Accounting standard which has been notified in section 133. अगर मैनेजमेंट किसी भी स्टैंडर्ड से मटेरियल डिपार्चर करता है तो यहाँ पर हमें उसका रीजन भी एक्सप्लेनेशन भी डिस्क्लोज करनी होगी. सो वी हैव सीन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब हम ऑडिट करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट प्रिपेयर करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करेक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने की. आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एग्जामिन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एंड टू गिव अवर ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन अवर एप्लीकेबल अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. सो मूविंग अहेड फ्रॉम हियर, यहाँ पर हमने देखा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और एज ए ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. एक पॉइंट मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जब भी हम कोई चीज़ कहते हैं, जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कोई चीज़ ऐसी आइडेंटिफाइड होती है और हम उसको मैनेजमेंट से ही नोट्स टू अकाउंट में इनकॉर्पोरेट करवा देते हैं, देन इट मीन्स कि वो नोट्स टू अकाउंट में जो इनकॉर्पोरेट हुई है that has been incorporated by the management. हमें अपनी कोई चीज अगर रिपोर्ट करनी है, बताना है, then that has to be disclosed in our audit report. Audit report कौन कौन सी हैं, कहाँ डिस्क्लोज करना है, we will see later on. These are the engagement and quality control standards applicable for all the financial statement, all the audit we are going to do. जब भी कोई ऑडिट करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि विच सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, विच सेट ऑफ ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स इज एप्लीकेबल ऑन मी, क्योंकि these are the different set of standards. SQC 1 talks about the quality control of firms that performing audit and review. जो फर्म, जो हमारी सी फर्म है, उसके ऊपर SQC 1 एप्लीकेबल होता है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फर्म परफॉर्मिंग ऑडिट एंड रिव्यू. अब इस SQC 1 में देयर आर मेनी पॉइंट्स हैज बीन डिफाइंड वेयर वी कैन सी कि फर्म जो ऑडिट कर रही है उसकी पार्टनर्स की क्वालिटी क्या है, प्रोसीजर क्या है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है. दी ऑल आर पॉइंट्स फर्म्स हैज टू बी मेंटेन्ड. और जब हम फर्म का पीयर रिव्यू कराते हैं तो SQC 1 के अकॉर्डिंग फर्म ने ऑडिट क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया है, these all points has to be incorporated as per SQC 1 in our peer review report. So firm के ऊपर applicable होता है SQC 1. अब हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं. जो हमारे मेन स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200-2810 applicable for the auditors while conducting the audit of historical financial information. जब भी किसी हम ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं, जैसे आज की डेट में हम जब मार्च 31 मार्च 2021 का ऑडिट कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसका ऑडिट करते हैं बेस्ड ऑन द ऑल द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स मेंशन्ड अंडर दिस कैटेगरी. नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट. स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट एप्लीकेबल जहां पर हम केवल रिव्यू कर रहे हैं किसी फाइनेंशियल हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जब रिव्यू कर रहे हैं, जैसे लिस्टेड कंपनी है जहां पर या उसकी सब्सिडी है, हम क्वार्टरली रिपोर्ट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड लिमिटेड रिव्यू. एंड लिमिटेड रिव्यू इफ वी आर डूइंग देन SRE 2400 and 2410, two standards are there under this category, or based on applicable we give our opinion that
we have done the audit based on the limited informations produced before us. एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, जब भी हम ऑडिट करते हैं तो रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस, क्योंकि कोई भी सर्टिफिकेशन अगर होती है देन वी आर गिविंग एब्सोल्यूट ओपिनियन. नो टू सर्टिफिकेट्स कैन बी डिफरेंट. लाइक एक सर्टिफिकेट मैंने दिया और एक सर्टिफिकेट हेमंत भाई ने दिया, तो दोनों सर्टिफिकेट अगर नंबर्स होंगे, सर्टिफिकेट है, तो बोथ सर्टिफिकेट शुड बी सेम. लेकिन अगर ओपिनियन की बात करते हैं, ऑडिट की बात करते हैं, तो बेस्ड ऑन द प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, बेस्ड ऑन द प्रोफेशनल जजमेंट, टू ओपिनियंस कैन बी डिफर. सो रीजनेबल ओपिनियन देते हैं विच इज नियर टू एब्सोल्यूट बट नॉट एब्सोल्यूट. सो ऑडिट इज ए रीजनेबल एश्योरेंस. तो रीजनेबल एश्योरेंस से अगर हम कम की बात करते हैं, जब हम क्वार्टरली रिव्यू करते हैं तो वहां पर हम लिमिटेड ओपिनियन देते हैं, लिमिटेड रिव्यू करते हैं और वहां पर रीजनेबल ओपिनियन फ्रेम करते हैं बेस्ड ऑन द 2400 SRE. सो दीज आर द 3 ओपिनियंस. इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ओपिनियन हम जो देते हैं, नेगेटिव ओपिनियन. अब हम कहेंगे कि नेगेटिव ओपिनियन भी हम देते हैं, राइट. अवर स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट SAE 3400 which talks about applicable on all assurance engagement dealing in the other than financial information. Meaning thereby हम यहाँ पर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं. 3400 जो हमारा कहता है कि हमें जब ओपिनियन देनी है ऐसे ही 3400 के अकॉर्डिंग, हमारे पास ये अक्सर केस ऐसे आते हैं कि जब हम 3400 के अकॉर्डिंग हमें ओपिनियन फ्रेम करनी होती है, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का हमें रिपोर्ट इश्यू करनी होती है. तो यहाँ पर एक हमारी एक चैलेंज आता है कि केवल हम उन जो प्रोजेक्शंस फाइनेंशियल बनाई हैं क्लाइंट ने, उनको टेस्ट भी करें. उन टेस्ट को करने के बाद जो एग्जम्पशन, जो प्रिजम्पशंस यूज की गई हैं, दैट हैज टू बी डिस्क्लोज्ड. उन्हें डिस्क्लोज करें. ऐसे ही 3400 के अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट होती है, नेगेटिव ओपिनियन हम उसमें फ्रेम करते हैं कि दीज एजम्पशंस may be achieved or may not be achieved in future. So our responsibility to give opinion along with the financial certifications. So हम projected financial informations का audit कर सकते हैं subject to 34 standards, 3400 standards अगर हमने follow किया हो. Next one is standard on related services. This is applicable in case of engagement for agreed procedure and compiled financial information. This is particularly applicable in case where the chartered accountant playing a role of as a accountant. अब जहां पर भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेट हैज बीन कॉल्ड एज ए कंपाइलेशन एंगेजमेंट, कंपाइलेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो वहां पर हम जो ओपिनियन फ्रेम कर रहे हैं तो वहां पर कोई रिपोर्ट नहीं देते. 4400 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, रिलेटेड सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम उसमें उस समय हम ऑडिट ओपिनियन नहीं दे सकते. हम वहां पर अकाउंटेंट रिपोर्ट इशू करते हैं. 4400 में रिपोर्टिंग फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है. 4400 के अकॉर्डिंग अकाउंटेंट्स रिपोर्ट हम इशू करते हैं. इट मींस कि वी आर प्लेइंग अ रोल ऑफ मैनेजमेंट. हम मैनेजमेंट की साइड हैं, मैनेजमेंट के बिहाफ पे फाइनेंशियल्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं, accountant report issue kar rahe hain, then we cannot do the audit of that entity. So we have to specific careful during the our role responsibility as per the engagement and quality control standards. So I hope हम सभी को ये क्लियर होगा कि हम कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करें किस ऑडिट असाइनमेंट पर. Moving ahead, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की जब बात करते हैं, देयर आर नंबर ऑफ सेट्स जहाँ पर हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं सभी का. 200 से 299 के बीच जनरल प्रिंसिपल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है कि हमारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है इन केस ऑफ फ्रॉड,
वी हैव टू रिपोर्ट स्पेशल, वी हैव टू डिस्कस, अगर कोई ऑब्जर्वेशन है तो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करनी है। 260 कहता है कि 2 चार्ज वे गवर्नेंस के साथ वी हैव टू डिस्कस अवर रिस्क। सो देयर आर 9 स्टैंडर्ड्स अंडर दिस कैटेगरी। thereafter risk assessment and response to assess risk, here 6 standards are there, जहाँ पर हमें क्लाइंट की सबसे पहले रिस्क असेस करनी है बेस्ड ऑन द कॉर्पोरेट प्रोफाइल। और जब रिस्क असेस हो जाएगी, देयर आफ्टर वी कैन रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क, मतलब कि हम उस कैलकुलेटेड रिस्क को कैसे रिस्पॉन्स करना है। एज ए ऑडिटर हमें अपना सैंपल साइज बढ़ाना है, ऑडिट प्रोसीजर बढ़ाना है, किस तरह ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने हैं, तो ये सभी प्रोसेस को हम उसके बाद ही असेस कर पाएंगे। देयर आफ्टर थर्ड कैटेगरी 508 to 599 ऑडिट एविडेंस। जब हमने रिस्क असेस कर ली, देयर आफ्टर हमें ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करनी है। सबसे पहले हमारा इसके अंदर अंडर दिस कैटेगरी 11 स्टैंडर्ड्स आर देयर। 501 which talks about audit evidence, sufficient appropriate audit evidence, जहाँ पर हम इन्वेंट्री का, सपोज मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू वेरीफाई द इन्वेंट्री, but auditors is also responsible to present at the time of verification of inventory as per SA 501. So we have to check which standards applicable on our entity. So 501, thereafter external confirmation की अगर मैं बात करूं, 505 talks about external confirmation। हमें जो हमारे फाइनेंशियल्स में डेटर्स, क्रेडिटर्स या अदर कोई लोन्स एडवांसेस हमारे बुक्स में आउटस्टैंडिंग है, देन वी नीड टू टेक ए एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम ईच एंड एवरी आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ऑफ कोर्स जब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस कि कुछ नहीं भी आते हैं, बट हमें प्रोफेशनल जजमेंट की हायर वैल्यू वॉल्यूम का, मटेरियल अमाउंट का हमें ऑडिट एविडेंस जरूर कलेक्ट करना है। सो मल्टीपल स्टैंडर्ड्स आर देयर अंडर दिस कैटेगरी। वन इज ऑडिट सैम्पलिंग। ऑडिट सैम्पलिंग प्रोसेस अभी हम आगे एक बार डिस्कस करते हैं। यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स 600 से 699 अंडर दिस कैटेगरी 3 स्टैंडर्ड्स आर देयर। लाइक 610 यूजिंग द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिट ने जो वर्क किया, ऑडिटर ने जो वर्क किया, तो उसके वर्क को हम अपनी मैन ऑडिट रिपोर्ट में यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर क्वालिटी ऑफ द वर्क एंड रिपोर्टिंग ही हैज डन। सो हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि उस इंटरनल ऑडिटर के वर्क को विच वी आर यूजिंग, देन ऐसे 610 के अकॉर्डिंग हमने उसकी कंप्लाइंस करी है। हमने अगर कंपनी का ऑडिटर है, देन ऑफ कोर्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर टू चेक मोर दोज एरिया, क्योंकि कंपनी का अगर ऑडिटर इन हाउस होगा, देन डेफिनेटली वो क्वालिटी ऑफ ऑडिट कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हुई होगी। एंड अदरवाइज अगर एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटर्स है, देन ऑफ कोर्स क्वालिटी इंप्रूव होगी। वी कैन यूज मोर रिलायंस ऑन द रिपोर्ट ऑफ द इंटरनल ऑडिटर्स। Apart from this, if during the course of audit we require any opinion from the other chartered accountant, other professionals, then we can take 605 using the expert opinion from the others, और उसके अकॉर्डिंग हमें उसका कंप्लाइंस भी, कॉम्पिटेंसी को भी चेक करना है कि जो दे रहा है बंदा रिपोर्ट, whether he is a chartered accountant or others, whether he is competent enough to give the opinion on that part. So अगर वो competent है, based on the we can take a opinion from that person and we can use in our audit. Audit conclusion हम डिटेल में एक बार आगे बात करेंगे. This is the main standards where we have to draw our audit conclusions and reporting. Audit conclusions and reporting की अगर मैं बात करता हूँ, तो सबसे important है यहाँ पर कि हम अपनी ओपिनियन को, अपनी रिपोर्ट को किस तरह ड्रॉ करते हैं, what informations have to be incorporated, how it has to be done. स्पेशलाइज्ड एरिया, अगर कोई स्पेशल असाइनमेंट हमें मिला है कि हमें डेटर्स वेरीफाई करने हैं, स्टॉक वेरीफाई करना है, बैंक से मिला है या कोई कंपनी से मिला है,
तो हमें उसके अकॉर्डिंग भी स्पेशलाइज्ड एरिया का अगर ऑडिट कर रहे हैं तो अंडर दिस कैटेगरी 3 स्टैंडर्ड्स आते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें अपनी रिपोर्टिंग भी करनी है। Based on the entire auditing standards, we have compiled this audit procedure, जहाँ पर हमें स्पेसिफिक फोकस की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं बात करूँ तो ईच एंड एवरी स्टैंडर्ड इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अवर एंटिटी, बट कौन कौन से हमारे स्टैंडर्ड्स हमारी एंटिटी पर एप्लीकेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग एक ब्रॉडर अगर हम बात करें कि एक कंप्लीट पिक्चर बनाते हुए हमें उसको फ्रेमवर्क में लाना है। जस्ट मिनट। सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो बेस्ड ऑन दीज स्टैंडर्ड्स हमने एक चेकलिस्ट एक बनाई है, सो दैट वी कैन फॉलो एंड वी कैन चेक कि हमारे ऊपर एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स और उसके अकॉर्डिंग हमने ऑडिट प्रोग्राम भी डिजाइन करना है। इफ यू वांट एनी डॉक्यूमेंट अंडर दिस कैटेगरी आई विल डिस्कस, एंड अगर आपको कहीं भी कोई रिक्वायरमेंट है यू कैन मैसेज मी, आई विल शेयर ऑल द ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स विद यू, so you can perform your duties, perform your audit process carefully. अपॉइंटमेंट, सबसे पहले अगर अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिगार्ड टू एनओसी, एनओसी इज जनरली द करेक्ट वर्ड इज communicate with the previous auditor. So communication with the previous auditors is required as per code of ethics. So we have to take the discuss the cognizance of the previous auditors, and this point friends is very much irrelevant, क्योंकि अगर कभी ना कभी कोई ऑडिट किसी प्रोफेशनल कलीग से जाता है तो वो उसके कोई ना कोई ऑब्जर्वेशंस रिजर्वेशंस होंगे दैट हैज टू बी टेकन केयर बाय द इनकमिंग ऑडिटर्स, और इस पॉइंट को प्रॉपरली एड्रेस भी किया गया है हमारी कारो की रिपोर्टिंग में। कारो 2020 में ये पॉइंट नया इंसर्ट भी किया गया है कि अब प्रीवियस ऑडिटर्स की जो ऑब्जेक्शंस हैं दैट हैज टू बी टेकन केयर। नेक्स्ट पॉइंट इज एंगेजमेंट। एंगेजमेंट हमारा एक 210 स्टैंडर्ड्स है दैट टॉक्स अबाउट द एंगेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी, एंड वी हैव टू टेक ए एंगेजमेंट लेटर फ्रॉम द क्लाइंट। एंगेजमेंट लेटर, कल को हमारे कोई डिस्प्यूट होता है क्लाइंट के साथ, देन डेफिनेटली इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल, और यहाँ पर हमें ये डिफाइंड होता है कि हमारा रोल क्या है। वी कैन क्लियरली से कि our role is to check, to audit the financial statement और other areas, other branches, अगर कंपनी की कोई ब्रांचेज हैं, प्रमाइसेस हैं, that has been included or not included in future में अगर कोई ओपन होती है, तो ऑल टर्म्स अगर हम लिटिगेशन की बात करें तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है which can save, which can clearly clearly present our view कि हमने एंगेजमेंट क्या डिस्कस की हुई है, और एंगेजमेंट लेटर हमारा ड्राफ्ट होना चाहिए। thereafter अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट, अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट के इसलिए जरूरी है बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, बिजनेस साइकिल क्या है, कितने महीने में डेटर्स रियलाइज होते हैं, कितने महीने में कैश कन्वर्ट होता है, कितने प्रोडक्शन साइकिल क्या है, प्रोसेस साइकिल क्या है, इन्वेंटरी उस हिसाब से मेंटेन करनी है। तो बेस्ड ऑन अलग अदर पैरामीटर्स वी हैव टू सी all those informations has to be relevant to plan our response in the risk involved in the business. So understanding the client, thereafter planning. जब हमने रिस्क को असेस कर लिया देन कम्स प्लानिंग पार्ट। प्लानिंग की अगर मैं बात करूं तो रिस्क मेटेरियलिटी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि मटेरियल क्या इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे काम करेंगे। कोई एक फिगर मैं नहीं बता सकता कि 1 लाख की फिगर मटेरियल है या नहीं,
ये डिपेंड करता है हमारी एंटिटी के बिजनेस पर, साइज ऑफ द एंटिटी। अगर एंटिटी का बिजनेस 100 करोड़ का है, 100 करोड़ का टर्नओवर है, देन ऑफ कोर्स 1 लाख इज ए वेरी नॉमिनल अमाउंट एंड कैलकुलेटेड। अगर मटेरियल की बात करें तो इट इज नॉट ए मटेरियल। हम मटेरियल अगर अमाउंट होगा तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है, देन वी हैव टू मेक अवर एडजस्टमेंट, then we have to modify our report. If it is not a material, then definitely we can ignore. So audit process is all about materiality concept, sampling process. Materiality में हमें ये भी डिसाइड करना होगा कि हम बेस्ड ऑन टर्नओवर materiality डिफाइन कर रहे हैं, बेस्ड ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, या बेस्ड ऑन प्रॉफिट डिफाइन कर रहे हैं। इट मे बी 1% का टर्नओवर, अगर 100 करोड़ का बिजनेस रिसीट है तो 1 करोड़ इज द मटेरियल अमाउंट। कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट 1 करोड़ से ऊपर होती है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज ए मटेरियल। कैपिटल के बेसिस पे भी ले सकते हैं अगर कंस्ट्रक्शन फेज में कंपनी है। एंड थर्ड वन इज प्रॉफिट के बेस में, अगर कंपनी का 5 करोड़ प्रॉफिट है, 100 करोड़ में 10 करोड़ प्रॉफिट है, तो 10 करोड़ का अगर मैं बात करूं, 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज ए मटेरियल अमाउंट। सो 50 लाख से ऊपर अगर ट्रांजेक्शन है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज ए मटेरियल। Execution. Thereafter, checking the materiality concept, thereafter we will go into the audit program. Audit program के हमारे किस तरह हमें एक हमारी एंटिटी के ऑडिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि डेटर्स ज़्यादा है, कहाँ का लोकेटेड है। बेस्ड ऑन ऑल those parameters we have to डिजाइन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की चेकलिस्ट भी प्रिपेयर करनी है। Thereafter, we have to take in each and every case to those 580 के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट हमारे currently prepared and presented as per the applicable and auditor's responsibility to informations which has been presented by the management. हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट ने लिख के दे दिया ये इंफॉर्मेशन ठीक है, देन डेफिनेटली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट भी मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है, और मैनेजमेंट ने साइन कर दिया तो हम मान लेंगे? नहीं, हमारा रोल है कि जो मैनेजमेंट ने दिया है उसे हम वेरीफाइड करें, टेस्ट करें एज पर अवर स्टैंडर्ड्स, एश्योरेंस प्रैक्टिस है, उसके बाद टेस्ट करें, देन वी हैव टू गिव अवर ओपिनियन। Audit reporting we will see in the next slide. Thereafter, documentation. SA 230 talks about audit documentation, where it has to be disclosed all the document. We have to maintain all the documents. We will see in the later one slide where I prepared कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। अगर हम पीयर रिव्यू कराने जा रहे हैं, देन डेफिनेटली वी विल सी कि इन डॉक्यूमेंट्स को कैसे मेंटेन करना है, SQC 1 के अकॉर्डिंग हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम सभी देखेंगे। लेकिन बिलीव मी फ्रेंड्स कि हम केवल पीयर रिव्यू कराने तक ही अपने आप को सीमित न रखें, हमारी SQC 1 के अकॉर्डिंग इन ईच एंड एवरी केसेस में जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करें, देन ओनली वी कैन सेफगार्ड, देन वी कैन इन फ्यूचर प्रेजेंट अवर केस कि हमने प्रॉपर तरीके से जो ऑडिट किया था सैम्पलिंग बेसिस पर, we can safeguard our skill, we can present our case better way. So this is our responsibility to maintain all the documentations as per SA 230. Thereafter, conclusion and collection. Conclusion which comes under this audit reporting part कि हम जो conclude करते हैं audit report में sum up करते हैं. And collection is also required, most important point in nowadays where
एक एक साल की ऑडिट फीस अगर पेंडिंग है, अगले साल हमारे पास ऑडिट फीस नहीं मिली, देन वी हैव टू स्पेसिफिक केयरफुल कि क्लाइंट ऐसा क्यों है कि हमें फीस नहीं दे रहा है। इट इज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट जो हमारे रिवाइज कोड ऑफ कंडक्ट में भी कवर, रिवाइज कोड ऑफ एथिक्स में भी कवर किया गया है, जहाँ पर कि अगर हमारी फीस अर्लियर ईयर्स की हमारी फीस अगर पेंडिंग है तो दिस विल बी ट्रीटेड एज ए सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. So we have to be specific, careful, and convey to the client that they have to pay our fees after the conclusion of the audit. Now coming on this audit report for the financial year 1920, now we can amend this 2021. So at the time of drafting our audit report, we have to be specific, careful. हमारी independent report, one of the only documents which we are delivering to the members of the company, to the society, to the stakeholders, to the government, to the beneficiary of the all financial informations, we are going to present audit report for the financial year जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं. So now audit में अगर हम बात करते हैं, now here comes our responsibility. We have to, अगर हम यहाँ पर clean opinion frame कर रहे हैं, then we can take illustrative format defined in SA 700. 700 is a mother standards which shows the reporting part, how we can present our report in what illustrative formats, which has been revised from 1st April 2018 or 1819 onwards. Revised standards is applicable. So revised report applicable जो हमारी 1819 onwards चल रही है, that is applicable in current year as well. अगर इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स से हम डेविएट करते हैं, डेविएट कैसे करेंगे? इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट जो हम इशू कर रहे हैं, क्लीन ऑडिट रिपोर्ट से हम कहते हैं देयर आर सर्टेन फैक्ट वी वांट टू डिस्क्लोज, देन वी हैव टू सी कि विच स्टैंडर्ड टॉक्स अबाउट विच पॉइंट्स. हम एक बार समझते हैं, सबसे पहले हम अपने ऑडिट रिपोर्ट का फ्रेमवर्क. 700 में क्लीन ऑडिट रिपोर्ट प्रेस्क्राइब्ड है. क्लीन ऑडिट रिपोर्ट को हमें अगर फॉर्मेट इशू करना है तो मैच पर ऐसे 700 क्लीन ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट निकालेंगे, और whether it is for listed company, for public company, for private company, all format illustrative formats with a fair presentation framework is here. अगर उस रिपोर्ट को हम मॉडिफाइड करना चाहते हैं, रिपोर्ट मॉडिफाइड होती है एंड देयर आफ्टर देन comes the standard 705. 705 talks about the modified audit report. This is also revised. ये बात करता है कि ऑडिट रिपोर्ट को अगर मॉडिफाइड करते हो तो देयर में बी थ्री टाइप ऑफ ओपिनियंस यू कैन मॉडिफाइड योर रिपोर्ट. एज ए ऑडिटर्स हम अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाइड करते हैं तो देयर में बी वन क्वालिफिकेशंस, सेकंड वन में बी एडवर्स ओपिनियन, थर्ड वन में बी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियंस. अब सबसे पहले बात आती है क्लीन से मॉडिफिकेशंस में जाएंगे तो किस कंडीशंस में जाएंगे. पहली कंडीशंस जो होती है, यहाँ पर एक वर्ड है 705 में, मटेरियल मिस स्टेटमेंट. मटेरियल ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड. मिस स्टेटमेंट इज समथिंग कि which has been defined in our law and management has presented. If it is there is a difference between the presentation by the management and as per the law, अगर यहाँ पर कहीं भी कोई डिफरेंस है, whether disclosure में, कैलकुलेशन में, प्रेजेंटेशन में, रिकॉग्निशन में, अगर कहीं भी डिफरेंस है then it will be treated as a मिस स्टेटमेंट. एंड मिस स्टेटमेंट अगर material है then it will be treated as a this point will be treated as a modifications. So we have to modify our opinion report, and opinion our
जो हमारी ओपिनियन होती है दैट हैज उसको हम कहते हैं क्वालिफाइड और एडवर्स और डिस्क्लेमर। अब मैं बात करता हूँ हमने कि किस कैटेगरी में कब जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि हमने मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड कर लिया, देन अगर कोई इम्पैक्ट लिमिटेड इम्पैक्ट है उस मटेरियल मिस स्टेटमेंट का विच वी कैन क्वांटिफाई, which we can calculate, then it will be limited impact, then our opinion will be qualified and all the impact of that qualifications will be calculated and presented. लेकिन अगर उस क्वालिफिकेशंस का उस मटेरियल मिस स्टेटमेंट का इम्पैक्ट लार्ज है, देन डेफिनेटली जहाँ पर हम परवेसिव इम्पैक्ट बोलते हैं, जो एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पिक्चर्स को हिला रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पोजीशंस को हिला रहा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स सभी impacted होंगे, then definitely we have to give our adverse opinion. I will show one draft audit report so that you can understand the fact. Thereafter, disclaimer of opinion. डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की अगर मैं बात करूं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हम उस केस में देते हैं जहां पर हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली। इंफॉर्मेशन नहीं मिली इसका मतलब है कि हमारे पास कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स अवेलेबल नहीं थे जो मैनेजमेंट ने नहीं प्रोड्यूस किए, या किसी सर्च सीजर्स की वजह से वो बुक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल थे, या कोई ऐसी ब्रांच जिसको फाइनेंशियल हमारे में इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं जिसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं आ पाए हैं। तो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम उसके ऊपर ओपिनियन तो नहीं दे सकते। देन डेफिनेटली वी हैव टू गिव अवर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अगर हमें किसी भी ऐसे फैक्ट मिलते हैं जिसके बेसिस पर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है, लिमिटेशंस है हमारी, देन वी हैव टू गिव एडवर्स डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। Thereafter, now coming on this part, 706 हमारी मेन ऑडिट रिपोर्ट में एक और पॉइंट होता है जहां पर हम कवर करते हैं एम्फेसिस मेटा पैराग्राफ और अदर मेटा पैराग्राफ। एम्फेसिस मेटा पैराग्राफ मेन ऑडिट रिपोर्ट में हम कवर करते हैं और अदर मेटा पैराग्राफ भी कवर करते हैं। तो अब यहाँ पर कौन से मैटर्स इंक्लूड होंगे और कब होंगे? एम्फेसिस मेटा पैराग्राफ की अगर मैं बात करूं तो दिस इज विद रिगार्ड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई ऐसे पॉइंट्स which impact on the financial statement, but management has correctly presented and disclosed those informations in financials, notes and others, then उन सभी मैटर्स को हम एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ में कवर करेंगे। लाइक मैनेजमेंट ने एक कंटिंजेंट लायबिलिटी शो कर रखी है नोट्स टू अकाउंट्स में, which may occur in future, may not be occur in future, that has to be covered in emphasis matter paragraph. Second one is other matter paragraph. यहाँ पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में कि अगर कोई लिटिगेशन चल रही है, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर रखा है, देन लिटिगेशन जो नोट्स में डिस्क्लोज कर रखा है, आई वांट टू हाईलाइट दोज पॉइंट। उसको अगर हमें हाईलाइट करना है क्योंकि मैं चाहता हूँ उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है फ्यूचर में, तो उस पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए हम एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में कवर करेंगे कि दिस पॉइंट पॉइंट नंबर सो एंड सो विच टॉक्स अबाउट लिटिगेशन, कंटीजेंट लायबिलिटी या फ्रॉड which has been correctly disclosed, write off by the management, so हम उसको emphasis matter paragraph में cover करेंगे। other matter paragraph, in short OMP talks about the management responsibility, auditor's responsibility paragraph। अगर एज ए ऑडिटर हमारी रिपोर्ट से रिलेटेड कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर हम ऑडिटर ओपिनियन अपनी ओपिनियन को क्वालिफाइड नहीं कर रहे, रिपोर्ट को मॉडिफाइड नहीं कर रहे, बट हेड ऑफिस लेवल पर, रीजनल ऑफिस लेवल पर दो इन्फॉर्मेशन विल बी क्लब्ड,
और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उससे रिलेटेड, and that information has been disclosed in other matter paragraph. Like जब हम ब्रांच ऑडिट करते हैं तो मैनी पॉइंट्स, जब ब्रांच की ऑडिट, बैंक ब्रांच की ऑडिट करते हैं तो मैनी पॉइंट्स को हम कई जगह ऐसा देखते हैं जहां पर मैनेजमेंट को उन सभी पॉइंट्स को रीजनल लेवल या हेड ऑफिस लेवल पर टैकल करना होता है। एज ए ऑडिटर अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस को साइन कर रहे हैं तो जितने भी फैक्टर्स हैं, वेदर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ऑडिटर्स फी प्रोविजंस या कंटिजेंसी प्रोविजंस या प्रोविजन फॉर एडवांसेस, उन सभी को कैलकुलेट कराना, लेकिन हम नहीं करा रहे हैं। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम सभी को पॉइंट को यहाँ पर डिस्क्लोज करते हैं अदर मैटर पैराग्राफ में। अदर मैटर पैराग्राफ में हम डिस्क्लोज करते हैं कि विद रिगार्ड टू दीज पॉइंट्स, these point has to be taken care at the head office level. So इंफॉर्मेशन हमने सभी प्रेजेंट कर दी और उन चीजों को टैकल भी कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, 701 की ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर्स किस केस में अप्लीकेबल है? जनरली कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन रहती है कि कौन से पॉइंट्स को हम कहाँ पर कवर करें और किस लेवल पर उसकी सेंसिटिव को प्रेजेंट करें। नाउ कमिंग ऑन दिस 701, 701 talks about the key audit matters. It is applicable for listed companies and for other entities. Voluntary we can use, not mandatory. Key audit matters क्या matters होते हैं? जब भी हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसे इश्यूज जो हमारे सामने आए विच इज कॉम्प्लेक्स, विच इज क्रिटिकल, बट वी हैव solved those matters with the help of the management, and we have discussed with the management and solved all those matters, but due to the complex structure we want to highlight those matters. ऐसे कई इश्यूज थे जो हमने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करे, दो चार्ज विद गवर्नेंस एज पर 260 और स्टैंडर्ड्स। उसके बाद मैंने सोचा कि उसमें से कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनमें प्रॉब्लम्स अभी भी हो सकती है। हमने टैकल कैसे किया, मुद्दे सामने जो आए, इश्यू सामने आए, उनको टैकल कैसे किया, फिर भी इट मे have some large impact in future or may not impact, but it is critical, then we want to highlight those matters in key audit matters. Key audit matters को हम next slide में देखते हैं कि ऐसे कौन से issues हैं। How to identify them. अगर नहीं भी issue है हमारी audit report में, financial statement audit में, then also key audit, there is no key audit matters reported during the audit, हमें disclose करना है in case of listed companies. Key audit matters are defined as those matters in the auditor's professional judgment were most significant in the audit of the financial statements of the current period. Matters that were communicated with those charged with governance, जो हमने matters governance जो directors हैं या audit committee उनसे जो discuss किए, matters that required significant auditor's attention, उनमें से कुछ ऐसे issues कम होके जो हमारे पे specific attention मांगते हैं, उनमें से भी हमने कई इश्यू ऐसे सॉल्व कर लिए। देयर आफ्टर कुछ इश्यू को हम डिस्क्लोज करना चाहते हैं, मैटर्स ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट। फॉर एग्जांपल, एरिया रिक्वायर कॉम्प्लेक्स एंड सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पर मैनेजमेंट ने कोई जजमेंट लिया है, सिग्निफिकेंट जजमेंट लिया है, क्योंकि जजमेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर पास्ट रिकॉर्ड फॉर द फ्यूचर डायरेक्शंस, फ्यूचर एस्टिमेशंस। certain complex area relating to revenue recognitions, कोई अगर बड़ा प्रोजेक्ट है, whether it may be research and development, real estate construction project, infrastructure project, तो अगर ऐसे कोई प्रोजेक्ट है जहाँ पर revenue recognition से related कोई complex recognition process है, then we have to discuss
provisions and contingency, taxation matters, multiple tax jurisdictions, uncertain tax provisions, deferred tax asset अगर कोई बनाई है तो taxation matters you can cover under this assessment. Assessment of impairment, क्योंकि these are the meta IT systems and control, significant difficulties encountered during the audit, related party transactions, limitations on group audits. इस तरह के इश्यूज हमारे सामने आते हैं जिनकी वजह से हम रिपोर्ट को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, बट वी हैव टू फेस, वी हैव टू गिव इश्यू एंड सॉल्यूशन देयर ऑफ. हम लिस्टेड कंपनी की जब ऑडिट देखेंगे तो वहां पर हम सभी देखेंगे कि इश्यूज भी उन्होंने लिखे हैं, साथ में उसको कैसे एज ए ऑडिटर ने कैसे उसको डील किया, क्या प्रोसेस फॉलो किया, इट हैज टू डिस्क्लोज. बैंक ऑडिट जब करने जाते हैं या कोई रिटेल सेगमेंट में कंपनी है उसका ऑडिट करते हैं, देयर आर lakhs of transactions per day, number of volume इतना ज्यादा हाई होता है, तो उन सभी को हम एक सैंपल बेसिस पे 1 दिन या 2 दिन का चेक कर सकते हैं, बट देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स, फ्रॉड, एरर. सो उन इश्यूज को मैं यहाँ पर की ऑडिट मैटर्स में कवर कर सकता हूँ. So these are the reporting requirements. Now I'm showing a draft report so that we can understand the हम सभी को पता है कि ऑडिट रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है, बट स्टिल वी हैव टू सी वंस so that we can analyze the matters. This is independent audit report. Here we have to give our opinion paragraph first. Earlier जो redrafting हुई है 2016 में स्टैंडर्ड को रिवाइज किया गया, and redrafting of this report has been made. रीड्राफ्टिंग में जो रिपोर्ट की रीड्राफ्टिंग की गई है, यू कैन सी दिस रिपोर्ट हियर. ओपिनियन पैराग्राफ सबसे पहले इंटरनेशनल प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने कि सबसे पहले यूजर्स क्या देखना चाहता है कि रिपोर्ट की ओपिनियन क्या है, ऑडिटर्स की ओपिनियन क्या है. तो रिपोर्ट पे ओपिनियन पैराग्राफ फर्स्ट दे हैव इनकॉर्पोरेटेड ओपिनियन पैराग्राफ, देन बेसिस ऑफ ओपिनियन, देयर आफ्टर की ऑडिट मैटर्स. अगर यहाँ पर कोई की ऑडिट मैटर्स नहीं है देन ऑल्सो वी हैव टू डिटरमाइन, लिखना पड़ेगा, वी हैव टू डिटरमाइन एंड देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स टू कम्युनिकेट इन अवर ऑडिट रिपोर्ट. अगर है then we have to report also. Information other than standalone financial statement on auditor's report thereon, other management responsibility, auditor's responsibility for those. अगर हमारा कोई emphasis matter paragraph में cover करना चाहते हैं then we can cover after key audit matter paragraph. emphasis matter paragraph यहाँ पर cover हो जाएगा. उसके बाद मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी on the audit of financial statement. Auditors की responsibility as a part of audit in accordance with SA. हम सभी लिख रहे होते हैं कि हमने सभी SA का compliance किया, क्या actually हमने किया. We have to be careful. We exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also identified assessed risk of material misstatement. So हम सभी देखेंगे कि हमने जो एनालिसिस किया है based on our audit report, the figures we have to disclose. Report on other legal regulatory requirements. अगर हमारे ऊपर कारो एप्लीकेबल है, कारो के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करेंगे. अगर हमारे ऊपर IFC इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एप्लीकेबल है, अगर कोई इंड एस में फाइनेंशियल्स बना रहे हैं, ये इंड एस की रिपोर्ट है, देन डेफिनेटली कारो एंड IFC रिपोर्टिंग एप्लीकेबल. So report on other legal regulatory में we have covered Caro report and as well as internal financial control report. So this is the format of report. If you want to see other figures, मैं एक बार और एक report दिखाता हूँ आपको so that RRB.
एक रिपोर्ट मैं आपके सामने और प्रेजेंट कर रहा हूँ जिसके बेसिस पे हम एनालाइज कर सकते हैं। अगर हमने ऑडिट किया ओपिनियन पैराग्राफ, देन बेसिस ऑफ ओपिनियन ये हमने ऑलरेडी की ऑडिट मैटर्स वी हैव कवर्ड हियर वेरियस पॉइंट्स अंडर दिस मैटर की ऑडिट मैटर्स where we have discussed अगर कोई हमने एक बैंक का ऑडिट किया था, रूरल बैंक का ऑडिट था, जहां पर उसने अपनी सर्कुलर के थ्रू कुछ इंस्ट्रक्शन इंटरनल सर्कुलर्स इशू किए हुए थे। तो बेस्ड ऑन दैट सर्कुलर्स, अब कहीं ना कहीं उस सर्कुलर्स के बेसिस पे वी आर बाउंड टू फॉलो, लेकिन आरबीआई का सर्कुलर कुछ और कह रहा है, इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट कुछ और कह रहा है। तो हम कहीं ना कहीं एक क्रिटिकल पोजीशन में है जहां पर हमें अपनी ओपिनियन भी फ्रेम करनी है और उसको डिस्क्लोज भी करना है। देन वी हैव गिव this view has further been explained in ICA guidance note of the bank audit. However, the bank has followed its head office circular. बैंक ने ये फॉलो किया. So we have to disclose or all fact. Thereafter, responsibility of the management, auditor's responsibility for the audit of financial statement. अदर मैटर पैराग्राफ में जो दिखाना चाहता था आपको, अदर मैटर पैराग्राफ में वी कैन कवर, पहला पॉइंट तो हम कवर कर सकते हैं, द ओपिनियन एक्सप्रेस इन प्रेजेंट रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन द लिमिटेशन फैक्ट। कोविड के कारण अगर हमारे पास कोई लिमिटेशन अराइज हुई है, अगर हम कोई पॉइंट्स का वेरीफाई नहीं कर पाए हैं, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशंस, सिक्योरिटी ऑफ स्क्रूटनी ऑफ द फिक्स एसेट आइटम्स, एक्सेस कंट्रोल ऑफ डाटा सिक्योरिटी, किसी भी तरह की अगर हमें एक्सेस में या हमारी कोई लिमिटेशन अराइज हुई है, तो वी हैव टू कवर दोज इंफॉर्मेशंस इन अदर मैटर पैराग्राफ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई जो हेड ऑफिस लेवल पर हम ब्रांच ऑडिट कर रहे हैं, तो वी कैन सी वेरियस डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बोनस, एक्स ग्रेशिया, एडवांस पेमेंट ऑफ वेजेज, टर्मिनल परमिशेबल बेनिफिट टू एलिजिबल एम्प्लॉय, ये भी हम कैलकुलेट ब्रांच लेवल पर नहीं करते हैं, बट आवर ड्यूटी टू रिपोर्ट, वी आर बाउंड बाय द ऑल एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, so it's our duty to report all those matters that it has to be dealt with the head office level. Areas of salary, wages, allowances, if any, staff welfare contributions, old unreconciled linkage entry in debit credit, depreciation, auditor's fee, taxation, advance provision, advances, provision for advances, reversal of interest on new NPA, मतलब इस तरह की जो पॉइंट जो हेड ऑफिस लेवल पर होने हैं, that has been disclosed in our report. Apart from this, we have also incorporated many other points in this report. We could not be furnished the sufficient appropriate audit evidence in respect of the interest received paid from head office. कोई अगर हेड ऑफिस से ट्रांजेक्शन हुई है और उसका हमें अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला है, देन स्टिल अगर हम ग्रुप कंपनीज की बात करें, देन वी हैव टू कवर ऑल इंफॉर्मेशन इन अवर appropriate place. So we have seen the drafting process and how we can strong our independent audit report process and what information has to be covered under this independent audit report और यहाँ तक कैसे पहुँचे. Now again moving on that slide. Just a minute. अभी तक अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो यू कैन पोस्ट, यू कैन डिस्कस, सो दैट and definitely I'm happy to answer all those informations based on our little knowledge. क्वेश्चन आंसर में कोई है नहीं क्वेरी. ओके ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ. अगर आपको कोई भी पॉइंट ऐसा लगता है कहीं पर भी डिस्कस करना है, यू कैन पोस्ट योर क्वेरी इन द चैट बॉक्स.
हमारे इंस्टीट्यूट ने नाउ मूविंग अहेड आफ्टर डिस्कसिंग ऑन द इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट किस तरह हम ड्राफ्ट करें, एक गाइडेंस इश्यू करी थी ऑडिटर्स वर्क रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। लास्ट 1.5 ईयर में हम लोगों ने देखा बहुत सारी बिजनेस एंटिटीज को क्लोज होते हुए, कुछ को आगे प्रमोट हो रही हैं जिनका बिजनेस बढ़ रहा है, कुछ ऐसी एंटिटी जहां पर हम अम्यूजमेंट पार्क की बात करें, रेस्टोरेंट्स की बात करें, होटल्स की बात करें, ट्रेवल डेस्क की बात करें, उनकी बिजनेस ना के बराबर हो गए। उनकी लॉसेस इतने ज़्यादा हैं कि वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर कंटिन्यू कर सकते हैं, फंड्स अवेलेबल हैं, देन नो इशू। सो वी हैव टू बी स्पेसिफिक केयरफुल with regard to going concern entity. Our accounting standard 1 talks about the fundamental principle कि हमें accounting जो prepare करने हैं वो going concern के basis में करने हैं। अगर going concern हमारा नहीं है, then it means we have to prepare our financials as per liquidation basis. So it is important point as a auditors कि हमें इंस्टीट्यूट की गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैटर्स an auditor should consider going concern assessment due to COVID-19 or inherent uncertainty. जब हम मैटर्स को असेस करेंगे तो मैटर्स के वेरियस फंडामेंटल्स की, हमारी बिजनेस की डिमांड, हमारा फ्यूचर क्या है, प्रोस्पेक्ट क्या है, और सरवाइव करना है, प्रॉफिट, कैश, लिक्विडिटी हमारे पास अवेलेबल है या नहीं, ये सभी फैक्टर्स, रेशियोज, इन सभी के बेसिस पे हमें अपनी रिपोर्टिंग करनी है। और 570 के अकॉर्डिंग, 570 हमारा एक स्टैंडर्ड है ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 570 विच टॉक्स अबाउट कि अगर हमारा गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट कर रहा है, देन वी हैव टू कवर दिस एडिशनल पैराग्राफ इन आवर ऑडिट रिपोर्ट। सेकेंड गाइडेंस इश्यू करी है इंस्टीट्यूट ने फिजिकल इन्वेंट्री वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। 500 ऑडिट एविडेंस की बात करता है और 501 ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन विद रिगार्ड टू सेलेक्टेड आइटम्स। इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री के लिए वंस इन ए ईयर यू हैव टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द इन्वेंट्री, कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री एंड सपोर्ट वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री। सो साल में एटलीस्ट वंस इन ए ईयर, डिपेंड ऑन द कंपनी पॉलिसी, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, लेकिन ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि एक साल में एक बार इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन हो जाए। अगर हम फिक्स एसेट की बात करते हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, देन हमारा प्रोसेस वंस इन ईयर फिक्स एसेट को वेरीफाई करने का होना चाहिए। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स है, लार्ज सिस्टम है, जहाँ पर लार्ज फिक्स एसेट्स आर देयर एंड इन द कंट्री, अलग अलग लोकेशंस पे अवेलेबल है, सो हम अपना ऑडिट प्रोग्राम इस तरह डिजाइन कर सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ द फिक्स एसेट कि एटलीस्ट 3 years में entire verification of fixed asset can be done. So once 1/3 in first year, 1/3 in second year, 1/3 in third year. So on the basis inventory की हम बात करते हैं, inventory की our responsibility to present at the time of verification of the inventory. Here अगर लास्ट ईयर बात करें तो लास्ट ईयर भी मार्च अप्रैल मई में लॉकडाउन था। अभी भी हमने देखा अप्रैल मई ऑनवर्ड्स यहाँ लॉकडाउन की सिचुएशन अराइज होगी ऑल ओवर कंट्री वाइड। तो कहीं ना कहीं हमने एक अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर को भी यूज करना है। अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर पे जो उन्होंने गाइडेंस दी है कि यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, अगर इंटरनल ऑडिटर ने वेरीफाई करी है तो हम उसकी रिपोर्टिंग को यूज कर सकते हैं। engagement other chartered accountant at the physical verification level. सपोज मुझे मुंबई जाना था या कोई दूसरी हिसार जाना था जहाँ पर क्लाइंट का वेरिफिकेशन करना था, हम नहीं कर पाए, तो हमने वहाँ के एक लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब जो वहाँ पर प्रेजेंट है, उसकी हेल्प से हमने वेरीफाई करवाया। तो वी हैव यूज्ड द स्पेसिफिक कंसिडरेशन ऑफ द अदर्स प्रोफेशनल्स यूजिंग द टेक्नोलॉजी इन द इन्वेंट्री काउंटिंग। कोई ऐसा वे आउट है जहाँ से सॉफ्टवेयर के थ्रू या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमने इन्वेंट्री को वेरीफाई कर पाया है, या इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी से हम कंफर्मेशन लेकर कर सकते हैं। बट वी हैव टू यूज द अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
After now coming on this component of annual report, एनुअल अकाउंट्स की बात करते हैं जब एनुअल रिटर्न जो हम कंपनी की एमसीए में फाइल करते हैं एमजीटी 7 के अकॉर्डिंग, और एनुअल रिपोर्ट की जब मैं बात करता हूं तो these are the component of annual reports: financial statements, auditor's report, and director reports. Director report as per section 134 subsection 5, director is responsible to prepare director's report, in which he has to disclose all the material fact which is mandatory as per section 134(5), जहां पर उन्होंने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी, की मैटर्स, वो सभी यहाँ पर आपको डिस्क्लोज करने हैं। ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑलरेडी बीन डिस्कस कि हमारी रिपोर्ट जो पार्ट होता है, हमारा रोल होता है एज ए ऑडिटर्स रिपोर्ट इश्यू करना, दैट हैज बीन ऑलरेडी बीन डिस्कस इन लेंथ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट प्रिपेयर करेगा एज पर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जब मैं बात कर रहा हूँ तो कौन कौन से सेट हैं स्टैंडर्ड्स के जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल है, अभी मैं आगे देखता हूँ। Under this financial statement, balance sheet, profit and loss account, statement of equity, statement of change in equity if required, it is required in case of India's financials, cash flow statements, notes to accounts. जनरली ये क्वेश्चन रहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हमारी हर कंपनी पर एप्लीकेबल है, सो यू कैन सी द सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 where it has been mentioned कि financial statement के these are the component, but if it is your one person company, a small company or dormant company, so अगर आपकी कोई इस टाइप की कंपनी है then cash flow is not required. स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन अगर मैं 2 सबसेक्शन 85 की बात करूं, 31 मार्च 2021 तक डेफिनेशन जो थी 50 लाख पेड अप कैपिटल एंड 2 करोड़ टर्नओवर, बट फाइनेंस एक्ट 2021 में this small company definition has been amended, which is applicable, notified from 1st April 2021. So 21 onwards, small company definition is 2 crore paid up share capital and 20 crore turnover. So अगर किसी कंपनी का दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, जॉइंटली कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, स्मॉल कंपनी डेफिनेशन में कवर्ड होती है, then that company is not required to maintain cash flow, and various other exemptions are also there to those companies. कंपाइलेशन एंगेजमेंट ऑलरेडी बीन डिस्कस, जो मैंने बताया था, जहाँ पर अकाउंटेंट रिपोर्ट इशू करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट एविडेंस जो हमने कलेक्ट किए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, दैट हैज टू बी मेंटेन फॉर अ पीरियड ऑफ working paper held in help in planning of the audit, supervising audit trail, providing that the audit was actually carried out, and audit file documentation are the record comprising, उसमें क्या क्या हम कवर कर सकते हैं, ऑडिट प्रोसीजर क्या अप्लाई किया, एविडेंस हमें क्या मिले, और कंक्लूजन क्या अचीव किया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, एंड दीज असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल विद इन 60 days आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, जिस डेट को हम साइन कर रहे हैं उसके विद इन 60 days हमें ऑडिट डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना है, एंड दीज डॉक्यूमेंटेशन टू बी प्रिजर्व्ड फॉर द 7 years. SQC 1 जो हमारा कहता है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, दैट टॉक्स अबाउट कि हमें 7 साल तक उन ऑडिट फाइल को, डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना है। व्हाट डॉक्यूमेंट्स कैन बी इन द ऑडिट फाइल, अगर हम बात करें कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे पास हो सकते हैं, तो MRL की जब मैं बात करता हूं तो MRL मैनेजमेंट जो लेटर रिप्रेजेंटेशन देगा विद रिगार्ड टू कोविड इम्पैक्ट,
गोइंग कंसर्न एंटिटी है, एस्टिमेटेड एस्टिमेट ऑफ द नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, हमारी ऐसी इन्वेंट्री तो नहीं जो एब्सोल्यूट हो गई या इसकी वैल्यू डाउन हो गई है या खराब हो गई है, तो हमें उसकी रिलाइजेबल वैल्यू का भी एस्टिमेशन लेना है मैनेजमेंट से। फिजिकल स्टॉक टेकिंग, मोरेटोरियम गिवन बाय द आरबीआई एंड अवेल्ड बाय द कंपनी प्लस सब्सिक्वेंट इवेंट। तो इस तरह की अगर कोई भी मैनेजमेंट से हमें ये डिस्क्लोजर लेना है, सब्सिक्वेंट इवेंट अगर कोई इम्पैक्ट कर रहा है जिसके बेसिस पे हमें उसकी एडजस्टमेंट भी करनी है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन की मैं बात करूं तो एमएसएमई की कंफर्मेशन लेनी है, क्योंकि एमएसएमई का हमें जो एमएसएमई फॉर्म 1 फाइल करना है, तो हमारे कौन से डेटर्स क्रेडिटर्स एमएसएमई हैं, वी हैव टू टेकन केयर। सन्डे डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक कंफर्मेशंस, चेंजेस इन लीज एग्रीमेंट, अगर कोई लीज एग्रीमेंट चल रहा है हमने उसमें रिवाइज कराया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा कि लास्ट 1.5 ईयर में लीज एग्रीमेंट्स में कंसेशंस हुए हैं, डिस्काउंट्स हुए हैं, तो इस तरह के एग्रीमेंट्स को भी चेक करना है। लिटिगेशंस अगर कोई चल रही है, लिटिगेशंस, इन्वोकेशन ऑफ फेस फोर्स मेजर क्लॉज, इन्वोकेशन ऑफ द पेनल्टी क्लॉज, वर्किंग नोट्स 115 BBA new rates if adopted, then इसके रिगार्डिंग टैक्स लाइबिलिटी के रिगार्डिंग, एंड 710 लास्ट ईयर ऑडिट रिपोर्ट इफ क्वालिफाइड एडवर्स और डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर, चेक वेदर दिस ईयर करेक्टिव एक्शंस हैज बीन टेकन और नॉट। तो उसका करेक्टिव एक्शंस भी मैनेजमेंट ने क्या लिया है और उसके बेसिस पर इस साल हमें ये भी एडिट, जब 710 कहता है कि करस्पॉन्डिंग फिगर्स हैज टू बी डिस्क्लोज, जब करस्पॉन्डिंग फिगर्स डिस्क्लोज कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग अगर लास्ट रिपोर्टिंग पीरियड में क्वालिफाइड मॉडिफाइड अवर रिपोर्ट थी, तो उसके इस साल में क्या करेक्टिव एक्शंस हैज बीन टेकन ड्यूरिंग द ईयर। शेड्यूल 3 इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बाइफर्केशंस, there in schedule 3 there are number of changes I will discuss in later on slide. मैनेजमेंट सर्विसेज वर्सेस ऑडिटर्स डिस्क्वालिफिकेशंस, अगर मैंने बात करी कि हम क्लाइंट को मैनेजमेंट सर्विसेज भी दे रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑडिटर्स, और मैनेजमेंट सर्विसेज क्या हो सकती हैं, बुक कीपिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, कि हम क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट को कहाँ एडवाइज करें, इससे रिलेटेड भी एडवाइज करते हैं, शेयर्स में, प्रॉपर्टीज में एडवाइजरी सर्विस दे रहे हैं, आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं, एमसीए फॉर्म्स फाइल कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन सर्विस कर रहे हैं, in which case qualifications and disqualifications will arise and why we have to see. If we see our independent guidance note on independence of auditor, हमारे इंस्टीट्यूट का एक गाइडेंस नोट है, which talks about कि एज ए इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स अगर आपके अपने ही काम को दोबारा रिव्यू कर रहे हो, then this will threat to your independence. अगर मैंने कोई काम किया, अकाउंट्स प्रिपेयर किए, मैंने इन्वेस्टमेंट की एडवाइस करी, या कोई ऐसी चीज, कोई सर्विसेज जो मैंने प्रोवाइड करी उसी को मैं दोबारा रिव्यू कर रहा हूँ, देन डेफिनेटली देयर मे बी threat of independence. So this guidance notes in summarize, we have to see कि whether other than audit services are rendered to company, अगर नहीं करी हैं तो no disqualifications, और अगर मैंने करी हैं whether other than audit any service we have rendered, then second point, whether services rendered are subjected to further review by a chartered accountant, मतलब आपको दोबारा रिव्यू करना है, if yes then disqualifications. Now coming on back slide, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग की अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मैंने अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं तो उसी का हम दोबारा
ऑडिट कर रहे हैं, then definitely our errors, our मिस स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड और हम उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, then definitely there is a disqualifications. We are going to review our own work. Like this इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, हम अगर कोई इन्वेस्टमेंट AS13 के अकॉर्डिंग हमें इन्वेस्टमेंट चेक भी करना है कि मैनेजमेंट हैज करेक्टली प्रेजेंटेड, अगर परमानेंट अगर लॉस है दैट हैज टू बी रिकॉग्नाइज, तो उस इंफॉर्मेशन को हम दोबारा रिव्यू करेंगे, देन देयर इज ए डिस्क्वालिफिकेशन, दैट सर्विस वी कैन नॉट परफॉर्म. Now coming on the ITR forms or MCA forms, there is no disqualifications. We are not going to, हम यहाँ पर किसी भी तरह की रिव्यू नहीं कर रहे हैं, जस्ट ए कंप्लाइंस पार्ट है. कंप्लाइंस ITR का, MCA का, ROC फॉर्म्स का we can do where there is a no review of the own work performed by a chartered accountant. So there is no disqualifications. नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन सर्विस. रिप्रेजेंटेशन सर्विस हम जो प्रोवाइड करते हैं लाइक वेरियस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हाई कोर्ट, ITAT, wherever we are representing our clients, there is no disqualifications. We are not reviewing our own work, we are just reviewing, representing our own client. So now we can highlight those informations कि हमें क्या काम करना चाहिए एज पर सेक्शन 144. अगर मैं देखूंगा इंटरनल ऑडिट, किसी स्टैट्यूटरी, बीइंग ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स वी कैन नॉट डू द इंटरनल ऑडिट्स. सो इस तरह की चीजें 144 में, और उसको गाइडेंस नोट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर्स के साथ अगर रीड करते हैं तो दी जाता पॉइंट वी हैव टू टेकन केयर. Now coming on the accounting standards. क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सभी एंटिटी को कंप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है? Every entity is required to comply with the accounting standards, whether it is a company, whether it is a small entity, firm, partnership firm, proprietorship firm, HUF, if we doing the business and preparing the financial statement. Yes, every entity, यहाँ पर हम जो वर्ड यूज करते हैं कंपनी और अदर देन कंपनी, एंटिटी, every entity is required to follow the accounting standards which preparing the financial statement. Companies की बात करें तो there are two sets as per accounting standards. One is Companies AS Rule 2006, which has been amended into Companies AS Rules 2021 में जो amend हुए अभी latest in June. Second set of standards is Companies Ind AS Rules 2015. Companies Ind AS Rules 2015 with regard to Ind AS accounting, international accounting standard, which has been converged, notified in India as a Companies Ind AS Rule 2015 under section 133. So company अगर हमारी कोई है, प्राइवेट कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, we have to see कि कौन सा सेट एप्लीकेबल होगा. अगर मैं बात करूं लिस्टेड इंड एस की, तो इंड एस फेज वाइज इंडिया में इंप्लीमेंट किए गए फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 से. 1 अप्रैल 2015 से वॉलंटरी इंड एस एप्लीकेबल थे. देयर आफ्टर certain high class of company, high net worth class of company, listed company, so on, applicability start हुई. आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो every listed company is required to prepare its financial as per Ind AS. First, second, every company which is having net worth 250 crore and above, जिसकी net worth 250 करोड़ से ज्यादा है,
that is required to present its financials as per Ind AS. ICDS इनकम टैक्स के स्टैंडर्ड्स हैं जो नोटिफाइड हुए, that is applicable for all entity, क्योंकि इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें इनकम कंप्यूट करनी होती है, एडजस्टमेंट्स करनी होती है। अदर देन कंपनीज की बात करते हैं तो एवरी अदर एंटिटी that is also required to follow, because Companies Act not applicable on the other entities. So AS issued by ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंस्टीट्यूट ने इश्यू करे हैं, जो ट्रेडिशनल आई गैप है हमारे, that is applicable for all the entities. रिवाइज क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, हमारी जो पहले अगर मैं बात करूं, अदर देन एंटिटीज को, अदर देन कंपनी को, जो फर्म्स हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म, एचयूएफ, उन सभी को उन्होंने 3 लेवल में क्लासिफाई किया था। नाउ दिस क्राइटेरिया हैज बीन रिवाइज्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। सो 2021 की जो हम ऑडिट कर रहे हैं फाइनेंशियल्स की, उस पर रिवाइज क्राइटेरिया एप्लीकेबल है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पर उन्होंने 4 लेवल में क्लासिफाई किया। जो रिवाइज टर्नओवर है, लेवल 1 एंटिटी किसे कहेंगे, क्योंकि लेवल 1 एंटिटी पर सारे स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं। जो पहले हम बात करते हैं 50 करोड़ से ऊपर टर्नओवर और 10 करोड़ से ऊपर बोरिंग, लेवल 1 एंटिटी हुआ करती थी। इस क्राइटेरिया को उन्होंने बोरिंग को 50 करोड़ से ऊपर और टर्नओवर को 250 करोड़ से ऊपर एंटिटी जिसका होगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, देन इट विल बी कवर्ड अंडर दिस लेवल 1 एंटिटी। देयर आफ्टर लेवल 2 एंटिटी की मैं बात करूं, लेवल 2 एंटिटी एक्सीड जो 1 करोड़ से एक्सीड 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़, एक्सीड 1 बट डज नॉट एक्सीड 10, बोरोइंग 1 से 10 के बीच में, टर्नओवर यहाँ पर 10 होगा, 10 एक्सीड 10 बट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़। उन्होंने उठा के इसको रिवाइज कर दिया 50 से 250 के बीच में लेवल 2 एंटिटी, एंड बोरोइंग 10 से, जो 1 से 10 के बीच में बोरोइंग हुआ करती थी, वो कर दी 10 से 50 के बीच में। लेवल 3 में कवर्ड कर दी उन्होंने थोड़ी स्मॉल कंपनी, विच इज पहले लेवल 3 एंटिटी जिनकी 1 करोड़ से कम बोरोइंग है, 1 करोड़ से कम टर्नओवर हुआ करती थी, 1 करोड़ से कम। नाउ दे हैव कवर्ड 10 करोड़ से कम बोरोइंग है और 2 करोड़ से एक्सीड है, मतलब बिटवीन 2 to 10, एंड इसी तरह टर्नओवर को उन्होंने 10 से 50 के बीच में क्लासिफाई कर दिया। एंड नई लेवल ऑफ एंटिटी जो क्राइटेरिया डेवलप किया फॉर द माइक्रो एंटिटीज कॉन्सेप्ट, which is having turnover less than 10 crore or borrowing less than 2 crore. These are the micro non-corporate entities. अब now macro non-corporate entities के लिए which standards, many standards are not applicable and disclosure requirements are there. So relaxations has been provided under this criteria for non-corporate entities. So these are the accounting standards applicability. Now coming on the few points in Karo. कोई अभी तक आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन पोस्ट इन द चैट बॉक्स। मैं एक बार कारो में जाने से पहले मैं एक बार शेड्यूल 3 के चेंजेस, ओके, शेड्यूल 3 में जो चेंजेस हुए हैं वो एक बार मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा।
Schedule 3 के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3। हिस्ट्री में जाते हैं तो अगर हमारा पुराना कंपनी एक्ट था, जो कंपनी एक्ट 1956, डेट टॉक्स अबाउट शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग वी हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें 2011 में जो चेंजेस आए, देयर आफ्टर दे हैव गिवन द सिंगल ऑप्शन। पहले हम बात करते हैं वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों फॉर्मेट में बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे, फाइनेंशियल्स बनाते थे। बट रिवाइज शेड्यूल 6 में उन्होंने ओनली वर्टिकल फॉर्मेट परमिशेबल किया। कंपनी एक्ट 2013 न्यू आया, देयर आफ्टर दे हैव in the schedule 3 new concept, new schedule 3 inserted in company act 2013। schedule 3 जो बात करता है, शेड्यूल 3 को भी उन्होंने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया, थ्री डिविजन्स में डिवाइड किया। फर्स्ट डिवीजन जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिस पर लगते हैं उसके लिए एप्लीकेबल था, फॉर्मेट था बैलेंस शीट का, फाइनेंशियल्स का, स्टार्टिंग 26 मार्च 2014 से एप्लीकेबल है। दैट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 26 मार्च 2014 कि अगर कोई फाइनेंशियल्स प्रिपेयर कर रहे हैं हम एज पर द आई गैप, देन डेफिनेटली वी हैव टू यूज डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3। जब लेटर ऑन इंडेस फाइनेंशियल्स आए, इंडेस के हमारे ऊपर एप्लीकेबल हुए लिस्टेड कंपनी पे, अदर एंटिटीज पे, तो 2016 में 6 अप्रैल 2016 को दे हैव इश्यूड नोटिफाइड डिवीजन 2 टू शेड्यूल 3। 6 अप्रैल 2016 को नोटिफाइड हुआ, that is applicable for the company which are preparing its financial statement as per Ind AS other than NBFC। in thereafter NBFC के लिए जब एप्लीकेबल हुआ तो उन्होंने एक डिवीजन 3 टू शेड्यूल 3 11 अक्टूबर 2018 को नोटिफाइड किया, applicable for NBFC companies, those NBFC which are preparing its financial statement as per Ind AS। 1/4/2018 के बाद Ind AS NBFC पर भी एप्लीकेबल है। नाउ शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जब फाइनेंशियल्स बना रहे हैं, इसमें शिफ्ट जो मेजर चेंजेस आए 24 मार्च 2021 को, विच इज एप्लीकेबल फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। 2021 की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर ओल्ड शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करना है, और जो नया शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल्स बनाने हैं वो करंट फाइनेंशियल ईयर 21-22 के बनाने हैं। बट फ्रेंड्स, जब हम 2021 के फाइनेंशियल्स बनाएंगे अगले साल, तो हमें लास्ट ईयर के कंपैरेटिव फाइनेंशियल्स इंफॉर्मेशंस को भी रीस्टेट करना होगा, रीग्रुप करना होगा, रीक्लासिफाई करना होगा कंपैरेटिव बनाने के लिए। सपोज रिवाइज अमेंडेड शेड्यूल 3 में डिवीजन 1, 2, 3 में 24 विच इज एप्लीकेबल फॉर द करंट ईयर, जब हम डेटर्स क्रेडिटर्स का एज वाइज क्लासिफिकेशंस करेंगे, डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड क्लासिफिकेशंस करेंगे, तो हमें करंट ईयर के साथ लास्ट ईयर का भी क्लासिफिकेशन करना होगा। तो अगर आज की डेट में हमारे 31 मार्च की जो बैलेंस शीट बना रहे हैं, 31 मार्च 21 की जो बैलेंस शीट बना रहे हैं, वी हैव टू बी स्पेसिफिक केयरफुल while drafting the while incorporating the informations, so that अगले साल जब हम उस चीज को प्रेजेंट करें मैंडेटली, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो 3 साल से ऊपर क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन भी मांगी है एज बाई ब्रेकअप्स में, कौन से ऐसे हैं जो डिस्प्यूटेड है, 3 साल से ऊपर ऐसे कौन से क्रेडिटर्स हैं जिन्हें पेमेंट नहीं करनी है अभी तक, और जो डिमांड भी नहीं कर रहे हैं या कोई डिस्प्यूटेड भी नहीं है आप दिखा रहे हो उन्हें, तो वी हैव टू स्पेसिफिक केयरफुल। फ्यूचर में MCA is going to use the all informations which has been notified this year। हम देखेंगे कहीं ना कहीं हर चीज को उन्होंने अमेंड कर दिया। शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर्स अमेंड कर दिए, कारो के अकॉर्डिंग ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेंड कर दी, ऑडिटर्स को वेरियस अदर पॉइंट्स पे जो एग्जिस्टिंग कारो थी 2016 के अकॉर्डिंग, और 20 में देयर आर वेरियस नंबर ऑफ चेंजेस। जब नंबर ऑफ चेंजेस आर देयर तो हमें
रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट भी हमारी इनहेंस कर दी, ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोजर भी अमेंड कर दिए, डायरेक्टर रिपोर्ट में डिस्क्लोजर भी चेंज कर दिए. So there are so many changes they have been incorporated in this audit report. So we have to specific careful this year also कि हम 21 का जब ऑडिट करें, मार्च 21 का ऑडिट करें, तो हमें 21 में जो आने वाले चैलेंजेस हैं उनसे अवेयर होना चाहिए. बुक्स ऑफ अकाउंट्स का भी एक जो नया 24 मार्च को एक सर्कुलर आया था, जहां पर उन्होंने every company which are preparing its financial statement as books of accounts as per section 128 rules 3, company is required to present, company can prepare its financials in its books of accounts in digital mode also. डिजिटल मोड की जब हम बात करते हैं तो रूल 3 में 2 कंडीशंस आर देयर, जहां पर जो बात करता है कि जब भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ऑडिटिंग के बाद ऐसा नहीं कि वो बुक्स अल्टर हो पाए. मतलब ऑडिट कर दिया मैंने बुक्स का, टैली में अगर कोई डाटा प्रिपेयर्ड है, ऑडिट करने के बाद दैट बुक्स ऑफ अकाउंट हैज बीन अल्टर्ड, चेंज, द्वारा एंट्री पास कर दी. और कोई ऐसा मोड होना चाहिए कि हम लेजिबल फॉर्मेट में उस इंफॉर्मेशन को फ्यूचर में भी देख सकें. ये नहीं कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर लिया, उससे हमारी एक XML फाइल जनरेट हो गई विच इज नॉट क्लियरली रीडेबल एज ए जनरल पब्लिक. सो लेजिबल फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन हो सके. नाउ दे हैव इनकॉर्पोरेटेड वन मोर थिंग्स. हालांकि इस साल डेफर हो गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए चैलेंज है. मुझे हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल 22 से 1 अप्रैल 2022 से जो बुक्स बनेंगी वो ऐसे सॉफ्टवेयर में बनेंगी, ऐसी जहां पर इंफॉर्मेशन मैंने अगर हम अल्टर्ड करते हैं तो ऑडिट लॉग क्रिएट होना नहीं चाहिए. ऑडिट लॉग को डिसेबल करने का फीचर नहीं होना चाहिए. तो ये इंफॉर्मेशन के साथ हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्रिपेयर कर सकते हैं. तो वी हैव टू बी स्पेसिफिक केयरफुल while preparing all the informations, and हम ऑडिट करते समय भी इन सभी इंफॉर्मेशंस को क्लब कर सकते हैं. I will share these amendments, you can go through. कारो से रिलेटेड मैं आप लोगों को बता दूं, कारो की एप्लीकेबिलिटी. कारो 2016 is applicable for the current ऑडिट, मीनिंग thereby जो 2021 का जो हम ऑडिट कर रहे हैं उसके लिए हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा कारो 2016. एंड कारो 2020 जो 24 फरवरी 2020 में नोटिफाइड हुआ था, which has been deferred by 1 more year. So अब करंट फाइनेंशियल ईयर की 21-22 की जो ऑडिट होगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, उसके ऊपर कारो, रिवाइज कारो एप्लीकेबल होगा. बट रिवाइज कारो में देयर आर नंबर ऑफ चेंजेस, देयर आर number of additional requirements incorporated in the entity. एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं पहले, उसके बाद क्या क्या चेंजेस हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं विदाउट स्लाइड. एप्लीकेबिलिटी की मैं बात करूं तो कारो इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द एंटिटीज, ऑल द कंपनीज. कारो इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज. फॉरेन कंपनीज पर भी एप्लीकेबल है. फॉरेन कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डूइंग बिजनेस एक्टिविटी, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. सो एक्सक्लूजन्स क्या है? कारो सभी पर एप्लीकेबल है. देयर आर सम एक्सक्लूजन्स. नंबर 1 बैंकिंग कंपनी, नंबर 2 इंश्योरेंस कंपनी, नंबर 3 सेक्शन 8 कंपनी विच इज नॉट हैविंग प्रॉफिट मोटिव. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, स्मॉल कंपनी और 1 पर्सन कंपनी. स्मॉल कंपनी, 1 पर्सन कंपनी नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पर वेरियस रिलैक्सेशंस हैज बीन गिवन टू स्मॉल एंड 1 पर्सन कंपनी. They've been exempted the compliance from the various compliances like CARO, like IFC, internal financial controls, like cash flow requirement, like compliances, certification from the company secretary. So these are the requirements which has been exempted for the small companies. So we have to be specific careful at the time of
reporting our requirement. So one thing is clear, we have to report all the informations which is required only. So अगर हमारी कंपनी पर कारो इज नॉट एप्लीकेबल, तो हमें उस कारो की रिपोर्टिंग नहीं करनी है. अगर एप्लीकेबल है देन वी हैव टू टेक केयर. 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी जो हमने ऑलरेडी बताया डेफिनेशन 285 में जो डिफाइंड है, 2 सबसेक्शन 85, less than both conditions has to be satisfied, less than 50 lakhs paid up share capital and previous year turnover is less than 2 crore रुपए. ये टर्नओवर, ये कंडीशंस हम देखेंगे 2021 के लिए, बट करंट फाइनेंशियल ईयर से ये लिमिट्स रिवाइज हो गई हैं. तो आज की डेट में हम जो ऑडिट कर रहे हैं, जो ऑडिट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है, ये लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग, ये 2 लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग ही हम अपनी कंप्लायंसेस को चेक करेंगे. लाइक कंडेंस जो एमजीटी फॉर्म स्मॉल कंपनीज के लिए भी इशू किया है, जहाँ पर लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है. सो देयर आफ्टर, सो वी हैव टू यूज ओल्ड डेफिनेशन फॉर स्मॉल कंपनी. देयर आफ्टर मैं बात करूँ प्राइवेट कंपनीज की. प्राइवेट कंपनीज पर भी कारो एप्लीकेबल है, बट सर्टेन एग्जेम्पशंस आर देयर. प्राइवेट कंपनी शुड नॉट बी लिस्टेड, प्राइवेट कंपनी शुड नॉट बी सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी ऑफ एनी पब्लिक कंपनी. अगर है देन कारो इज एप्लीकेबल, इट शुड नॉट बी. और फाइनेंशियल लिमिट्स की, मॉनेटरी लिमिट्स की मैं बात करूं तो देयर आर 3 कंडीशंस. वन इज paid up share capital and reserve and surpluses should be less than 1 crore rupee. Borrowing should be less than 1 crore rupee, and turnover should be less than 10 crore rupee. All three conditions has to be satisfied together. All 3 conditions has to be satisfied together for exemption, claiming the exemptions from CARO. रिजर्व एंड सरप्लस 31 मार्च को चेक करेंगे. पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस collectively should not exceed 1 crore rupee and on 31st March. बोरिंग की अगर मैं बात करता हूं तो बोरिंग should not exceed even a single day, not even a single day. So 365 days में एक दिन भी अगर बोरिंग एक्सीड करी है देन कारो शैल बी अप्लाई. इसी तरह टर्नओवर एज पर शेड्यूल 3 कैलकुलेशन देखेंगे. So apart from this, on all entities CARO shall be applicable. CARO की मैंने एप्लीकेबिलिटी की बात करी. एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो यू कैन पोस्ट. नाउ कमिंग ऑन द लेटेस्ट few latest changes in CARO. CARO में जो मैं बात कर रहा हूँ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स की, देयर आर नंबर ऑफ चेंजेस हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड. अभी जो हम बात करते थे, आई विल टच अपॉन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. देयर आफ्टर अगले साल जो हमारे ऊपर कारो रिवाइज एप्लीकेबल है, देन वी विल डिस्कस क्लॉज बाय क्लॉज फॉर द ऑल एंटिटीज. अगर हम बात करते हैं व्हाट आर द चेंजेस, व्हाट आर द मेजर चेंजेस, मेजर पॉइंट्स इनकॉर्पोरेटेड इन कारो. तो फर्स्ट इन्वेंट्री की बात करते हैं. इन्वेंट्री में जो हम पहले रीजनेबल एक मटेरियल डिस्क्रिपेंसी की बात करते थे कि मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली, देन वी हैव टू नोटिफाई. नाउ दे हैव क्वांटिफाइड दिस मटेरियल डिस्क्रिपेंसी वर्ड. इफ देयर इज एनी चेंजेस लेस देन more than 10%, then you have to disclose. 10% मे बी अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, कि अगर कोई इन्वेंट्री 10% से ज़्यादा इरोड हो गई है या कोई वैल्यूएशन में चेंज हुआ है, देन यू हैव टू डिस्क्लोज इन ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री. इसी तरह अगर फिक्स एसेट जो इन्वेंट्री प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हुआ करती है, अगर उसकी वैल्यूएशन में कोई रजिस्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू इन्वेंट्री को फिक्स एसेट को वैल्यूएशन किया जाएगा और उसमें अगर देयर आर 10% से ज़्यादा कोई चेंजेस है, देन यू हैव टू डिस्क्लोज. Apart from this, property plant and equipments में one more change they have incorporated कि अगर टाइटल डीड ऑफ
property, plant and equipments and investments are not held in the name of the company, then you have to disclose all the relative informations property का क्या है, amount किसके नाम में है, कब परचेज करी, किसके नाम में है, डायरेक्टर, शेयर होल्डर and directors, relative of the directors. So all the information has to present it. अगर कंपनी के नाम में उस कंपनी की उस एसेट्स की टाइटल डीड नहीं है. इन्वेंट्री में एक और पॉइंट ऐड किया गया. इन्वेंट्री में वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट हैज बीन इंसर्टेड वेयर हम जनरली जैसे क्लाइंट ने कोई बोरोइंग करी बेस्ड ऑन द वर्किंग कैपिटल लिमिट अगर ली बेस्ड ऑन द करंट एसेट्स की हमें एक स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक की. सो इस इंफॉर्मेशन में उस इंफॉर्मेशन जो सबमिट कर रहा है डेट हैज टू बी एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अभी तक ये नहीं होता था. बिलीव मी फ्रेंड, जितने भी सीसीओडी जो एनपीए होते हैं, जो इंफॉर्मेशन डिफॉल्ट्स होते हैं, उनमें जब बाद में चीज एक आइडेंटिफाइड की जाती है तो जो इंफॉर्मेशन सबमिट की गई, बैंक को इंफॉर्मेशन सबमिट की गई बाय द एंड ऑफ द बोरोवर्स एंड सीए ने अगर सर्टिफाइड कर दिया तो सी भी फंस सकता है. वो कभी ना कभी कभी बुक्स से टैली नहीं होती. वो इतनी इन्फ्लेटेड फिगर्स होती है, इन्वेंट्री की इन्फ्लेटेड होती है, डेटर्स नॉट मोर देन 6 मंथ हमें नहीं डिस्क्लोज करने होते हैं, वो भी डिस्क्लोज होते हैं. एंड इन्वेंट्री पेड इन्वेंट्री होनी चाहिए, तो उसकी भी हम कहीं ना कहीं वहाँ पर इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं, लेस नहीं करते हैं. सो दीज आर द फैक्ट जो हमें डिस्क्लोज करने हैं. अब इन इंफॉर्मेशंस के बेसिस पर अगर हमारी वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन हुई है 5 करोड़ से एक्सीड, तो हमें ये इंफॉर्मेशंस चेक करनी है कि दीज इंफॉर्मेशंस हैज बीन करेक्टली submitted to the bank or financial institutions. Or management will also disclose reconciliation statement. If there is any variance, then management will disclose the reconciliation statement in notes to accounts as per the revised schedule 3. So these are the few points. As far as CSR policy is concerned, there are major amendment in CSR policy also, where company is required to spend CSR amount from voluntary to mandatory. Now company is required to spend those funds mandatorily. अगर नहीं करती है, then they have to transfer those funds to the government as per schedule 7. So we as a auditors have to be specific careful at the time of calculating and audit risk, assessed risk, and how we are responding those risks based on our audit requirements, based on the company's act provisions. हमारे ऊपर कंपनी के जो provisions लगते हैं as a auditors, then definitely we are bound to follow जो requirements है. हमारी एक सेक्शन कंपनी का 147 है, वेयर ऑडिटर इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर पेनल्टी. अगर कोई इंफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड नहीं है to 5 lakh and 4 times of the audit fee. So there are measures has been taken by MCA to cover out the fraud, mismanagement by the companies. And as auditors, we are duty bound. हमारी ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन इंफॉर्मेशंस को रिपोर्ट करें. एंड बिलीव मी फ्रेंड्स कि इस साल की जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी 21-22 के बाद, उनके बेसिस पर एमसीए एक्शन लेना भी स्टार्ट करेगा. डिपार्टमेंट कैन ऑल्सो टेक द एक्शंस कि जो 3 साल से ऊपर क्रेडिटर्स खड़े हुए हैं जो डिस्प्यूटेड नहीं है, तो ये वाकई पे करने हैं या नहीं करने हैं. नहीं पे करने तो एडिशन भी हो सकती है उसकी. तो अब एनसीएलटी में जब केस जाता है, जब इंसॉल्वेंसी कंपनी इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल करती है, तो ऑडिटर आईपी देखता है कि उसमें डिस्प्यूटेड अमाउंट था ही नहीं, सारे गुड्स थे. लेकिन बाद में पता चलता है देयर आर पार्टी ने पेमेंट क्यों नहीं करी, देयर आर डिस्प्यूट फ्रॉम द बिगिनिंग. सो वी हैव टू बी स्पेसिफिक केयरफुल एट द टाइम ऑफ ऑडिट. So with this,
I conclude my session here, and thank you all for patient listening. And you feel any query right now or later on, you can text me. मैं chat box में अपना number share कर रहा हूँ. You can discuss me with any time. और अगर किसी भी तरह का कोई ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स भी अगर आप लोगों को जरूरत है in to strengthen the audit process, so you can message me. I will share all those documents. थैंक यू सुमित भाई, एक मिनट Thank you में देख very लेता हूँ कोई much. query है, कोई वो है तो नहीं। चैट बॉक्स में आपने नंबर दे ही दिया है। प्रेजेंटेशन आप दे देना और मैं इसकी रिकॉर्डिंग सुमित भाई आपको भेज हाँ, दूंगा। डाल दिया मैंने। और इसकी प्रेजेंटेशन आप देना और इसकी जो रिकॉर्डिंग है मैं आपको भेज दूंगा। तो हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर देते हैं, वहां पर भी इसको अपलोड करा देंगे। सुधीर जी नमस्कार। नमस्कार सुमित जी। नमस्कार सुधीर भैया, कैसे हैं? बढ़िया। बढ़िया। Now I request Sudhir ji to give vote of thanks to our Fine, sir. dear brother Sumit ji. सुमित जी, आज का जो आपका प्रेजेंटेशन था वो बहुत ही शानदार था और बहुत ही नॉलेजेबल प्रेजेंटेशन था रिगार्डिंग द फंडाइजेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। व्हाट आर द थिंग्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल फंडाइजिंग ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, व्हाट आर द प्रोविजंस। एंड वी होप कि जल्दी ये पैंडेमिक खत्म हो और हम जो है फिजिकली जो सेमिनार करें और वहाँ पे जो है पार्टिसिपेट करें। थैंक्स once again for this knowledgeable and interactive section. Thank you, Sumit bhai. Thank you. And best of luck future endeavor and best of luck for your CC elections. Thank you, Hemant ji, Sudhir Bhaiya, and thank you all participants for joining. Thank you, everyone. Thank you.